Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. This is your science lecture of grade 4th, and I am your science teacher Aparna Pandey from DPS Lamachar. So student, as you all know that we have started our new chapter number 13, and its name is the environment. The name of our chapter is the environment. So in this chapter we have already discussed things related to environment, but we have discussed that whatever in our surrounding, it comes under the environment. Whether it is living things or non-living things, they all comes under the environment. And in living things we can divide them into mainly two parts, flora and fauna. Flora means plants, fauna means animals, right? Then we have discussed about the non-living things, where I told you that we can divide them into the two types of resources like natural resources and human-made resources. Natural resources like air, water, mountain, pebbles, stones, that is given by nature to us, but they do not have life. And then we have also there is one type of non-living things that are human made, that the things that are made by the human are called human made resources like weather, food, furniture, computer, automobiles, rickshaw. These all things comes under the category of the human made resources. So these all things we have already discussed in our previous class. Now students, in today's class we are going to discuss about the new topic, pollution. The introductory class of the pollution, or I can say the introduction related to pollution, I have already given you. But I said whenever we exploit the things, whenever we exploit the nature, we create pollution. जब भी हम nature की चीज़ों को exploit करते हैं, overuse कर देते हैं, instead of thinking कि what will happen when these resources will end, जब ये सारे resources finish हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तब क्या होगा? We are not thinking that, and for making our life easier, for leading the easiest and luxurious life, we are taking the use of things again and again, and enormously we are using the things instead of thinking that how, from where we get these resources if they will get over. So what we are doing, we are creating pollution. So in today's class we are going to start pollution topic, and some types of pollution also here we will discuss, right? So let's see first what is pollution. When we make things for our use and then throw away them carelessly, we cause pollution. जब भी हम चीज़ों को, when we make things for our use, जब भी हम चीज़ों को अपने यूज़ के लिए बनाते हैं, when we make things for our use and then throw away them carelessly, एक तो हम अपने यूज़ के लिए बनाते हैं, उसके बाद हम उन्हें थ्रो अवे कर देते हैं केयरलेसली, बिल्कुल नहीं सोचते कि जब हम इन्हें थ्रो अवे कर रहे हैं तो ये कहाँ जा रही है. जब हम किसी चीज़ को थ्रो कर रहे हैं तो हम एनवायरनमेंट में ही तो थ्रो कर रहे हैं, तो हम इस चीज़ की बिल्कुल भी केयर नहीं करते कि व्हेन वी आर थ्रोइंग दिस थिंग्स, तो अब वो चीज़ें कहाँ जा रही है. देन वी कॉज पॉल्यूशन, तब हम क्या करते हैं, हम पॉल्यूशन कर देते हैं. मीन्स जब भी हम चीज़ों को यूज़ करने के बाद थ्रो कर रहे हैं, बिल्कुल केयर हमें नहीं है कि हम उस चीज़ को कहाँ थ्रो कर रहे हैं, जहाँ हम उसे थ्रो कर रहे हैं उसके क्या नेगेटिव इफेक्ट्स हो सकते हैं, वो हमारे एनवायरनमेंट को, हमारी सराउंडिंग को किस तरीके से हार्म कर रहा है, जो हम ऐसा कुछ भी नहीं सोचते, तो भी हम क्या करते हैं, पॉल्यूशन करते हैं, पॉल्यूशन क्रिएट कर देते हैं. एंड इन द सेम वे when we are overusing the things, then also we create pollution. अब कैसे overuse कर रहे हैं, you will come to know further. जब हम आगे के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे तब आप समझेंगे why I am saying overusing the things. Okay? Now say students, so what is pollution? When we are throwing things away in the environment carelessly, we are not thinking कि ये चीज़ें कहाँ जाएंगी, हमारी सराउंडिंग को कैसे नेगेटिव इफेक्ट देंगी, ये सब नहीं सोच रहे होते, बस हमने यूज़ किया चीज़ों को और थ्रो कर दिया, तो वी आर क्रिएटिंग पॉल्यूशन. So when we are doing such types of things, then we create pollution. Mainly pollution is of 3 or 4 types, but today here we are going to discuss mainly 3 types. Pollution is of like types of pollution: air pollution, water pollution, noise pollution, soil pollution. These are the different types of pollution, but today here we are going to discuss only about the air, water and soil.
ठीक है, नॉइज पॉल्यूशन नहीं डिस्कस करना है अभी हमें. इन अवर सिलेबस वी हैव 3 टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, एयर, वाटर एंड सॉइल. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस फर्स्ट. सो अब देखिए, आई टोल्ड यू इन प्रीवियस वीडियो ऑल्सो दैट व्हेन वी टॉक अबाउट द पॉल्यूशन एंड व्हेन वी से एयर पॉल्यूशन मीन्स वी आर पॉल्यूटिंग एयर. पॉल्यूटिंग एयर मीन्स हम एयर को खराब कर दे रहे हैं. व्हेन वी टॉक अबाउट वाटर मीन्स वी आर पॉल्यूटिंग वाटर एंड देन इट कॉजेज वाटर पॉल्यूशन. हम जब वाटर को खराब कर दे रहे हैं तो वो कौन सी कैटेगरी में आ जा रहा है, वाटर पॉल्यूशन की. व्हेन वी आर डिस्ट्रॉइंग सॉइल, जब हम सॉइल को खराब कर रहे हैं, जो हमारे सराउंडिंग में सॉइल है जब हम उसको खराब कर रहे हैं, देन वी आर क्रिएटिंग व्हाट टाइप ऑफ पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन. सो व्हाट इज द पॉल्यूशन? पॉल्यूशन मीन्स व्हेन वी आर putting harm in our environment. So when we put harm in air, it is called air pollution. When we create harm in water, it is called water pollution. And when we create harm in soil, it is called soil pollution. So today now we are going to discuss particularly about the air pollution. Let's see what is air pollution. See, अच्छा, just first think over it that how we can create pollution in air or how we can destroy the air. जो हमारी air है, जो हमारी सराउंडिंग में air है, हम उसे कैसे खराब कर सकते हैं या हम कैसे खराब करते हैं. कभी आपने सोचा है कि what are these things जिनकी वजह से हम air को pollute कर रहे हैं? देखिए, डिफरेंट टाइप्स की गैसेस आपने देखी होगी, सराउंडिंग में कई तरीके की गैसेस है. अब वो जो डिफरेंट टाइप की गैसेस हैं तो उनका अमाउंट इतना, अगर थोड़ी थोड़ी गैसेस होती एनवायरनमेंट में जाती कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम एनॉर्मसली इतना ज़्यादा डे बाय डे, डेली, एवरी मिनट, एवरी सेकेंड वी आर पुटिंग अ वेरी पॉइजनस गैस इन अवर एनवायरनमेंट. हम अपने एनवायरनमेंट में बहुत तरीके की पॉइजनस गैसेस को छोड़ रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, वो जो गैसेस जो हमारे एनवायरनमेंट में निकल रही हैं तो वो हमारी एयर को पोल्यूट कर रही हैं. अब कैसी गैसेस? जस्ट थिंक, जो व्हीकल्स हम यूज़ करते हैं, जो ऑटोमोबाइल्स हम यूज़ कर रहे हैं, किसकी वजह से चल रहे हैं? फ्यूल. फ्यूल क्या हो रहा है? बर्न. जब फ्यूल बर्न होता है, एनर्जी देता है, ऑटोमोबाइल्स चलते हैं, तो उस टाइम पे बेटा उनसे हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, लाइक CO2. ओके, तो ये क्या गैसेस? इट इज मेनी गैसेस आर देयर, बट राइट नाउ यू हैव टू नो ओनली अबाउट दिस. सो CO2, सपोज मान लीजिए सबसे इजीएस्ट गैस जिसके बारे में आप जानते हैं, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड. अब सोचिए, इतने सारे व्हीकल्स हैं हमारी अर्थ में और हम वो व्हीकल्स को जब चला रहे हैं, फ्यूल बर्न हो रहा है, तो उनमें से एक पॉइजनस गैस निकल रही है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड. अब हम कितने ज़्यादा अमाउंट में उस कार्बन डाइऑक्साइड को अपने एनवायरनमेंट में डाल दे रहे हैं. इन द सेम वे यू हैव सीन फैक्ट्रीज, ओके, इंडस्ट्रीज. उनमें क्या होता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है, उनमें से चिमनीज में से क्या निकल रहा है? धुआं निकल रहा है. वो जो स्मोक जो निकल रहा है, जो पॉइजनस गैसेस है उस स्मोक में, और वो कहाँ जा रहा है? वो स्मोक हमारे एटमॉस्फेयर में ही तो जा रहा है. एटमॉस्फेयर में क्या है? एयर. तो वो किसे खराब कर रहा है? एयर को खराब कर रहा है. सो ऐसे ही स्टूडेंट्स क्या होता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस जो है वो निकलती हैं और हमारे एयर में मिक्स हो जाती हैं. सो व्हाट हैपन्स व्हेन दीज गैसेस गो, कहाँ जाती है बेटा? दीज गैसेस मिक्स इन अवर एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर में क्या है? एयर. सो दीज ऑल हार्मफुल गैसेस मिक्स इन दी एयर और क्या करती है? हमारी एयर को इट मेक्स पॉइजनस. अच्छा, अब वाई डू वी नीड एयर? वी नीड एयर टू ब्रीथ. हमें एयर क्यों चाहिए? वी नीड एयर टू ब्रीथ. एंड थिंक अबाउट इट कि क्या आप पॉइजनस एयर को ब्रीथ कर सकते हो? जस्ट थिंक अबाउट सम बस स्टेशन. अगर कुछ याद करिए, ऐसा कभी हुआ हो व्हेन यू वेंट इन सम बस स्टेशन एरिया, देन यू कैन फील इट इज क्वाइट टफ फॉर यू टू ब्रीथ देयर. व्हाई? बिकॉज इन दैट पर्टिकुलर एरिया, due to many buses, the level of harmful gases is quite high and you feel quite uncomfortable in breathing. Just think कि जब वो छोटी सी जगह पे आपको इतना प्रॉब्लम हो सकता है, तो we are putting so much level of harmful gases in our environment and these poisonous gases are in our air now. कैसे हुई है ये एयर में, कैसे मिक्स हुई है? ड्यू टू अवर एक्टिविटीज. कौन सी एक्टिविटीज? लाइक व्हेन वी आर यूजिंग ऑटोमोबाइल्स, तो हम क्या करते हैं? ऑटोमोबाइल से जो हमारी गैस निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड, इट ऑल्सो मिक्स विद एयर, इट मेक्स एयर पॉइजनस. इन द सेम वे व्हेन वी हैव
When we burn crackers, जब हम क्रैकर्स को बर्न करते हैं तो उसमें से भी आप देखते हैं ना बहुत सारी हमारी गैस, धुआं निकलता है, स्मोक निकलता है. व्हाट इट इज ऑल्सो अ हार्मफुल गैस जो कि हमारे एनवायरनमेंट में मिक्स हो जाती है, हमारी एयर में मिक्स हो जाती है. इन द सेम वे डिफरेंट फैक्ट्रीज, नंबर ऑफ फैक्ट्रीज आर देयर जिनमें से चिमनीज में से बहुत ही ब्लैक बिल्कुल स्मोक निकलता है. व्हाट इट इज, वो भी क्या है, हार्मफुल गैस है. तो ऐसे कई सारी चीज़ें हैं. ये तो बहुत ही मैंने आपको कॉमन से एग्जाम्पल दिए. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटम्स जिनका यूज करके हम अपनी डेली लाइफ में, अपनी एनवायरनमेंट में, अपनी एयर में पॉइजनस गैसेस को मिक्स कर देते हैं. सो व्हाट इज एयर पॉल्यूशन? द पॉइजनस गैसेस लाइक CO2 and some many other poisonous gases are also there when they mix with the clean air. अब clean air क्या है? जैसे आपने देखी होगी इन हिली एरियाज, हिली स्टेशंस में, बिकॉज अभी वहाँ पे इतनी पॉपुलेशन नहीं है. तो ज़्यादा पॉपुलेशन की वजह से, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं है तो थिंग्स आर नॉट इन दैट मच नंबर. उतनी फैक्ट्रीज नहीं हैं, उतने व्हीकल्स नहीं हैं, उतने वी कैन से कि पॉपुलेशन नहीं है. तो उसमें से क्या है, गैसेस का, पॉइजनस गैसेस का अमाउंट भी कम है. तो वो जो फ्रेश एयर आप फील करते हैं, वो फ्रेश एयर आपको कभी भी मुंबई या दिल्ली एरियाज में नहीं मिलेगी. वाई? बिकॉज वहाँ क्या है, वहाँ इतनी पॉपुलेशन है, इतने व्हीकल्स हैं, इतनी फैक्ट्रीज हैं कि वहाँ की जो एयर है वो ओवर पॉल्यूटेड हो चुकी है. क्यों? क्योंकि हमने ही किया है, राइट? तो क्या है कि व्हेन द पॉइजनस गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स विद द क्लीन एयर, इट पॉल्यूट इट. जैसे ही वो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड इस तरीके से एयर में मिक्स होती है, वो एयर को पॉल्यूट कर देती है. ठीक है, कैसे होता है एयर पॉल्यूशन? मैंने आपको बता दिया, ऑटोमोबाइल से, क्रैकर बर्न करने से, और हम जो ये बाहर जो हम थ्रो कर देते हैं ना, थ्रो अवे आइटम्स, उनको बर्न करने से, प्लास्टिक को बर्न करने से, फैक्ट्रीज से जो धुआं निकलता है, इन सब चीज़ों से क्या होता है, एयर पॉल्यूशन होता है. ठीक हो गया. एंड वी नीड क्लीन एयर फॉर ब्रीदिंग. अब देखो, अगर हमें क्लीन एयर नहीं, अब क्लीन एयर तो हमारे पास है ही नहीं क्योंकि हमने ही एनवायरनमेंट में एयर को पॉइजन कर दिया है. तो what happens when we breathe this air? बिकॉज देखिए, वी डोंट हैव एनी सच थिंग कि हम एयर को फिल्टर करके ब्रीथ करें. ऐसा तो कुछ हम नहीं कर रहे ना, बिकॉज एवरी सेकेंड ऑफ अवर लाइफ वी आर ब्रीदिंग. ऐसा तो है नहीं कि हम इतना सोच कर ब्रीदिंग करेंगे कि हम बिल्कुल फिल्टर्स लगाएंगे और सारी पॉइजनस गैसेस रोक के हमें क्लीन एयर जाएगी. ऐसा तो कुछ नहीं होता. इट मीन्स व्हेनेवर वी आर ब्रीदिंग वी आर टेकिंग दीज पॉइजनस गैसेस इनसाइड अस. अब जब हम ये पॉइजनस गैसेस को अपने अंदर ले रहे हैं, डेफिनेटली इट क्रिएट्स सम हार्मफुल इफेक्ट्स इन अवर हेल्थ. So, due to these poisonous gas, due to this polluted air, many health issues creates in our body. What are these? Like breathing problems. जब हम ये polluted air को breathe कर लेते हैं तो हमारे अंदर कई सारी breathing problems हो जाती हैं. Problems related to asthma, problem related to lungs occurs in our body. Similarly, इट ऑल्सो इरिटेट्स आइज. आइज में ना एक अजीब सी जलन होगी. आपने देखा होगा एट द टाइम ऑफ दिवाली, आफ्टर दिवाली वी ऑल्सो फील दिस. क्यों होता है? बिकॉज हमारे सराउंडिंग में, एयर में इतनी पॉइजनस गैस मिक्स हो जाती है कि उसका इफेक्ट हमारी आइज में भी दिखता है, राइट? सो स्टूडेंट्स, दिस वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द एयर पोल्यूशन. नाउ देयर आर सम मेजर्स दैट वी कैन take for controlling the air pollution. Let's discuss them. So for this you can open your page number 121. Okay, so page number 121. Here how we can keep our air clean, that methods are given. Let's see. Be an environmental cop and lower air pollution. हमें एक environment cop जो हमारे environment की केयर करे वो बनना है, और लेट्स लोअर एयर पोल्यूशन. और हमें कोशिश करनी है कि हमें एयर पोल्यूशन को कैसे कम कर सकते हैं. टू डू सो फॉलो दीज एनवायरमेंटल सेविंग टिप्स. तो उनके लिए हमें ये एनवायरमेंटल सेविंग टिप्स को यूज करना है. व्हाट आर दीज? वॉक शॉर्ट डिस्टेंस, डू नॉट यूज अ कार. अगर आपको शॉर्ट बहुत पास में जाना है तो वॉकिंग करके जाइए, डू नॉट यूज कार. स्विच ऑफ कार इंजन्स एट द रेड लाइट. अब रेड लाइट पर जितनी देर आप रुक रहे हैं उतनी देर आप कार इंजन्स ऑफ कर दीजिए. जब आप अपने कार इंजन्स को ऑफ कर देंगे तो क्या होगा, फ्यूल बर्न नहीं होगा और उतनी देर हम उस पॉइजनस गैस को एनवायरनमेंट में मिक्स होने से रोक सकते हैं. यूज अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट. अगर आप हर कोई पर्टिकुलरली अपनी ओन कन्वेंस से ना जाके पब्लिक कन्वेंस में जाएगा तो उतने नंबर ऑफ व्हीकल्स को हम चलाने से रोक सकते हैं और उतनी ज़्यादा हार्मफुल गैसेस
स्प्रेड होने से रोक सकती हैं। यूज अ कारपूल टू गो टू स्कूल, यूज अ साइकिल टू ट्रेवल शॉर्ट डिस्टेंसेज एंड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप ट्रीज लगाएंगे उतनी ट्रीज कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर लेगी जो कि पॉइजनस गैस है, और उतना ज़्यादा हमें ऑक्सीजन देगी। So students, in today's class we have discussed what is pollution, what is air pollution, and what are the harmful effects that air pollution creates, and then we have learned some steps that we can use for saving our environment. So I hope that you all will like this video and you all will understand what is pollution. Thank you and have a nice day ahead.